Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about two significant literary devices. First one is anthropomorphism and second one is zoomorphism. While discussing about these two significant literary devices, simultaneously I am going to tell you the reasons why such type of literary devices used by authors in their works. And friends, now, let us understand these two literary devices. First of all, please keep this in mind that anthropomorphism is opposite of zoomorphism. Now, let us understand about these two literary devices in a layman terms. Anthropomorphism is such a literary device in which author tries to attribute human characteristics as well as qualities to some non-living objects. Such is anthropomorphism. And anthropomorphism is somehow relatable to personification, but it is not exactly similar to personification, as because in personification author tries to attribute human characteristics as well as human qualities to some non-living objects, but at the same time author, while using personification as a literary device, he tries to use figurative language. So please keep this in mind that in personification, there is use of figurative language by author. And in anthropomorphism, there is no use of figurative language. In such type of literary device, author tries to, while attributing human characteristics as well as behavior to some non-living objects, he tries to make that non-living object behave like a human being. Such is anthropomorphism as well as personification. And in zoomorphism, author tries to highlight human characteristics by using animal imagery. Now, this is the big as well as major difference between anthropomorphism as well as zoomorphism. Now, let us understand about these two literary devices in a more detailed way. This word is derived from the Greek anthropos meaning human. यानी इस वर्ड का डेरिवेशन ग्रीक वर्ड से हुआ था एंड एंथ्रोपोस का यहाँ पर मतलब है ह्यूमन एंड मॉर्फ का यहाँ पर मतलब है शेप. यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है जब भी हम किसी भी ह्यूमन क्वालिटी या फिर ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ एट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एंड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें ऑथर जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देने के साथ साथ ऑथर जो है इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करवाने की कोशिश करता है. तो इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करने के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह बात करते हैं एंड बिहेव करते हैं. तो ये जो है मेजर डिफरेंस है. पर्सोनिफिकेशन में फिगर्स का यूज़ होता है बट वो फिगर्स जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं करती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिटीज़ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दे दी जाती है फिगर्स का यूज़ करके पर्सोनिफिकेशन में. बट एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं होता. एंड जूमॉर्फिज्म में ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को एनिमल इमेजरी के साथ शो किया जाता है. यानी ह्यूमन बिहेवियर को एनिमल इमेजरी के साथ शो करवाने की कोशिश की जाती है. Then this term was coined by Greek philosopher Xenophanes. Please remember this. इस term को coin किया था Xenophanes ने. And Xenophanes एक तरीके से Greek poet भी थे and साथ ही साथ religious thinker भी थे. Then इस term को सबसे पहली बार यूज़ किया गया 1802 में. Now पोएट नोन फॉर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एंड उन पोएट का नाम जो कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के लिए जाने जाते हैं उनका नाम है ज़ीनोफेन्स. ये एक ग्रीक पोएट भी थे एंड साथ ही साथ रिलीजियस थिंकर भी. नाउ इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं, वो क्या है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। एंड इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि जब भी इस तरीके की डिवाइस को यूज़ किया जाता है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, बट इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, फिगर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। देन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अकर्स इन, कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस अकर करती है, फोक टेल्स में, फैंटेसीज में, चिल्ड्रन स्टोरीज में। सो एक टेक्स्ट है एलिस इन वंडरलैंड जो कि लेविस कैरोल का है। सो उस टाइप के उस पर्टिकुलर वर्क में भी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का यूज़ किया गया है। एंड साथ ही साथ माइथोलॉजीज, रिलीजियस स्टोरीज में इस टाइप की लिटरेरी डिवाइसेस अकर करती है मेनली। इट इज़ रिलेटेड टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सोनिफिकेशन। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि दिस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस इज समहाउ रिलेटेड टू personification, but it is not exactly as similar to personification, because in using personification non-living things are described with figures. जब भी ऑथर इस टाइप की personification एज अ लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करता है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स को एट्रीब्यूट कर देता है किसी भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ के साथ, बट जब भी एट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है वो फिगर्स के साथ शोकेस करने की कोशिश करता है पर्सोनिफिकेशन के केस में। देन अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन के बारे में जानेंगे। द रेन पोर्ड डाउन ऑन द वेडिंग गेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है जिसमें क्या कहा गया है, द रेन पोर्ड डाउन ऑन द वेडिंग गेस्ट इन डिफरेंट टू देयर प्लान्स, कि बारिश तब आई, बारिश जो है मैरिज के टाइम पर एकदम अनटाइमली जो है वेडिंग गेस्ट पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पर इनडिफरेंट जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। इस लाइन का ये मतलब है जब बारिश उस टाइम आई जब वेडिंग गेस्ट ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन द रेन एज इनडिफरेंट, यहाँ पर इनडिफरेंट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। क्या कभी रेन इनडिफरेंट हो सकती है किसी के लिए? जब उसका टाइम होता है तभी वो आती है। एंड लोग जो है कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए बारिश ना आए। बारिश जो है एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि कभी भी किसी भी टाइम पर अकर कर सकता है, एंड इसमें जो है लोगों की चॉइसेस मैटर नहीं करती है। सो द रेन एज इनडिफरेंट, तो रेन कभी किसी के लिए इनडिफरेंट नहीं हो सकती, यानी इसमें लोगों की विशेस जो है वो मैटर नहीं करती है। सो इस लाइन में ये एम्फेसाइज किया गया है कि रेन बिल्कुल क्रूअल टाइम पर, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आई। यहाँ पर इनडिफरेंट एक फिगर है, यहाँ पर फिगर का यूज़ किया गया है किसको शोकेस करने के लिए, क्रूअल टाइमिंग को शोकेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सोनिफिकेशन में फिगर्स का यूज़ किया जाता है। देन पर्सोनिफिकेशन हेल्प रीडर्स टू क्रिएट मोर विविड डिस्क्रिप्शन। इसके थ्रू पर्सोनिफिकेशन का ऑथर इस लिटरेरी डिवाइस का इसलिए यूज़ करता है ताकि इसके थ्रू चीज़ों को और भी डिटेल वे में डिस्क्राइब किया जा सके, एंड साथ ही साथ रीडर्स को उनकी थिंकिंग को जो है और भी एक्सप्लोर करवाया जा सके। एंड रीडर्स जो है पर्सोनिफिकेशन जब इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं तो इससे उनकी इमेजिनेशन और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो पाती है, एंड वो नए तरीके से इस वर्ल्ड के बारे में सोच पाते हैं, उसे एक्सप्लोर कर पाते हैं, एंड टू मोर पावरफुली कैप्चर द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके रीडर्स जो है ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जान पाते हैं। देन इन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म द ह्यूमन क्वालिटीज असाइन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो दोनों में कॉमनैलिटी पर्सोनिफिकेशन और साथ ही साथ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में दोनों में एक चीज़ की कॉमनैलिटी है, वो ये है कि दोनों में ही ह्यूमन क्वालिटीज़ या फिर ह्यूमन बिहेवियर को नॉन लिविंग थिंग के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है, बट पर्सोनिफिकेशन में फिगर्स का यूज़ होता है, एंड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में ऑथर क्या करता है, इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करके ऑथर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करवा सकता है। सो इन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म द ह्यूमन एंटिटीज एक्चुअली
डू बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स लाइक टॉकिंग। तो नॉन लिविंग करेक्टर्स जो है ह्यूमन बींग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे कि बात करना, किसी के प्यार में पड़ जाना। तो इस टाइप की क्वालिटीज़ जो है एंथ्रोपोफॉर्मिज्म में दिखाई जाती है। देन वाई ऑथर यूज एंथ्रोपोफॉर्मिज्म। सो ऑथर जो है इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को क्यों यूज़ करते हैं? ऑथर इज एबल टू कन्वे द मैसेज थ्रू अ सिम्बॉलिक एनिमल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑथर जो है किसी भी डायरेक्टली जो है ह्यूमन बीइंग को अटैक या फिर मॉक नहीं करना चाहता है, तो वो किसी भी अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए किसी भी एनिमल इमेजरी को यूज़ करता है या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को शोकेस करने की कोशिश करता है। एंड उसे शोकेस करने के साथ साथ वो ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में मैसेज देने की कोशिश करता है। एंड देन गिव ह्यूमन वॉइसेस एंड पर्सनालिटीज़ टू एनिमल्स। इसमें क्या होता है, ह्यूमन वॉइसेस या फिर ह्यूमन की पर्सनालिटीज़ शोकेस की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू। एंड साथ ही साथ एंथ्रोपोफॉर्मिज्म इस लिटरेरी डिवाइस को ऑथर एक और भी कारण से यूज़ करते हैं ताकि एनिमल्स की तरफ जो है लोग और भी ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की कोशिश करें, उनके साथ और भी ज़्यादा सिंपैथाइज जो है अपने आप को करवा सके। एंड देन है कन्वे अ मोरल और फिलोसफिकल मैसेज। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग को जो है डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को टारगेट करके ऑथर जो है उसे डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहता या फिर डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो जब भी मैसेज देने की कोशिश करता है तो वो किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करता है। तो इसके थ्रू एक चीज़ और भी पॉसिबल हो पाती है, वो मॉरली और साथ ही साथ फिलोसफिकली मैसेज दे पाता है इस सोसाइटी को ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, बट उन्हें जो है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट करवा दी जाती है। सो कन्वे अ मोरल और फिलोसफिकल मैसेज इन अ वे दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन करेक्टर्स कैन नॉट। सो then anthropomorphic animals are used to make comments on human society। इन एनिमल्स का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो ऑथर है वो अपनी इस सोसाइटी के बारे में कमेंट्री दे पाए, मॉक कर पाए कि सोसाइटी किस वे में जो है ऑथर के हिसाब से सही नहीं है। तो ऑथर इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोल के वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है, एंड वो भी किस लिटरेरी डिवाइस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, वो एंथ्रोपोफॉर्मिज्म के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। देन शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जब हम एट्रीब्यूट कर देते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ, इसके थ्रू जो है शोकेस किया जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में कितने अलग अलग नेचर के लोग जो है एग्जिस्ट करते हैं। showing different types of human behavior existing in our society by depicting variety of animals। बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन इस टाइप के लिटरेरी डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं ऑथर के द्वारा। एंड जब वो यूज़ करता है तो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को दिखाने की कोशिश करता है, एंड वो एनिमल्स इन रियल सेंस वो ह्यूमन बींग्स के नेचर को शोकेस करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के ह्यूमन बींग्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के नेचर होते हैं, किसी का अच्छा होता है और किसी का बहुत ज़्यादा बुरा। देन एग्जाम्पल्स ऑफ एंथ्रोपोफॉर्मिज्म। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ये वर्क है लेविस कैरोल के द्वारा लिखा गया। एलिस मीट्स अ लार्ज कैटरपिलर। एलिस इस वर्क में एक बहुत बड़े कैटरपिलर से मिलती है, हु बिहेव्स वेरी मच लाइक ह्यूमन बींग। तो इसमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में लेविस कैरोल ने एंथ्रोपोफॉर्मिज्म इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है, जिसमें एलिस जो है प्रोटैगनिस्ट वो एक बहुत बड़े कैटरपिलर से मिलती है जो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है। देन द कैटरपिलर इन एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड ही स्मोक्स। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं ठीक उसी तरीके से ये लार्ज कैटरपिलर भी बिहेव करता है, जैसे कि वो स्मोक करता है, आर्म्स को क्रॉस करता है,
धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ कॉन्डिसेंडिंग टोन में बात करने की कोशिश करता है, यानी सिंपैथी के साथ जो है एलिस से डील करने की कोशिश करता है इस वर्क में। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में एंथ्रोपोफॉर्मिज्म का यूज़ किया गया है। देन एनिमल फार्म कंसिस्ट ऑफ एनिमल। सो बहुत अच्छा जो दूसरा एग्जाम्पल एंथ्रोपोफॉर्मिज्म का है वो एनिमल फार्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। ये वर्क बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंथ्रोपोफॉर्मिज्म का, जिसमें एनिमल्स हैं बहुत सारे जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। जिसमें एक पिग है जिसका नाम ओल्ड मेजर है, जो कि बाकी सारे अदर एनिमल्स को रिबेल करने के लिए उकसाता है कि, और साथ ही साथ वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द जो है इस फार्म से मेंस को हटा दिया जाए। एंड वो इस तरीके की लैंग्वेज बोलता है जो कि बिल्कुल कार्ल मार्क्स की लैंग्वेज से सिमिलर होती है। देन पिग्स ओवरथ्रो द मैन। यहाँ पर पिग्स जो है फार्म से ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं मेंस को। दे बिकम टायरेंट्स। वो एक तरीके से वो टायरेंट बन गए हैं पिग्स, जो कि अगर रियल ह्यूमन बीइंग रियल लाइफ में देखा जाए तो एनिमल्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। बट ऑथर जो है इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस को इसलिए यूज़ करता है ताकि ह्यूमन बीइंग के बारे में और ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कमेंट्री दी जा सके कि ह्यूमन बीइंग्स जो है कितने वाइल्ड होते हैं, कितने बारबैरिक होते हैं। तो पिग्स ओवरथ्रो द मेन, दे बिकम टायरेंट्स हु एक्सप्लॉइट द अदर एनिमल्स इन द सेम वे दैट द मेन। ठीक उसी तरह पिग्स भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग रियल लाइफ में दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। All the animals in real life, pigs could not make political speeches. पिग्स हम देख सकते हैं कि रियल लाइफ में एनिमल्स पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं दे सकते, बट इस टेक्स्ट में ऐसा दिखाया गया है, जिस टेक्स्ट का नाम है एनिमल फार्म, एंड दिस वर्क इज बाय जॉर्ज ऑरवेल। एंड ही स्टेज अ रिबेलियन, बट इन एनिमल फार्म दे डू। ऑरवेल uses anthropomorphism to critique how the Soviet Union used Marxist ideology to oppress many people। यहाँ पे पिग्स सोवियत यूनियन को शोकेस कर रहे हैं एंड ये दिखाया गया है कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का यूज़ करके कितने सारे लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा था पिग्स के द्वारा, रेदर देन टू फ्री देम। यानी पिग्स जो है बाकी सारे एनिमल्स को फ्री करने के बजाय उन्हें ऑप्रेस कर रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, एंड खुद जो है उन्होंने डोमिनेंस मेंटेन कर रखी थी। देन द हिपोक्रेसी ऑफ द पिग्स रिप्रेजेंट्स द सोवियत यूनियन फेलियर। एंड जो पिग्स की हिपोक्रेसी है वो ये भी शोकेस करती है कि किस तरीके से यूएसएसआर फेल हो गया लोगों के वेलफेयर करने में। क्रिएट अ स्टेट वेयर पीपल वॉज ट्रूली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। यहाँ पे लोग जो है अपनी जिस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ को जीना था उस तरीके से नहीं जी पाए। ऐसा जो पिग्स है वो इस तरीके की आइडियोलॉजी और इस तरीके का जो प्रॉमिस था जो उन्होंने क्लेम किया था वो मेंटेन नहीं करवा पाए। देन जूमॉर्फिज्म भी एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ग्रीक वर्ड है जहाँ पर जून का मतलब होता है एनिमल्स एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या फिर स्टाइल देना। तो बेसिकली जूमॉर्फिज्म का मतलब ही ये होता है कि जब हम ह्यूमन फीचर्स को एनिमल्स के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये क्या है, जूमॉर्फिज्म है। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एनिमल एट्रीब्यूट्स आर इम्पोज्ड अपॉन ह्यूमंस एंड एनिमल फीचर्स आर एस्क्राइब टू ह्यूमंस। कि जो भी एनिमल फीचर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को दे दिए जाते हैं। जूमॉर्फिज्म इज यूज्ड इन कॉमन कन्वर्सेशन। कॉमन कन्वर्सेशन में इस टाइप की लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाई डाउटिंग हिम। कि वो उस इंसान पर डाउट करके वो बिल्कुल गलत कर रही है। यहाँ पर बार्किंग
यहाँ एनिमल के करेक्टरिस्टिक्स जो है किसी ह्यूमन बीइंग को दे दिए गए हैं। तो कभी भी कोई ह्यूमन बीइंग बार्क नहीं करता है, बट यहाँ पर इस टाइप का दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर जूमॉर्फिज्म का यूज किया गया है। तो शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय डाउटिंग हिम, वो उस पर डाउट करके गलत तरीके से उस पर चिल्ला रही है, बार्क कर रही है। देन वाई ऑथर यूज जूमॉर्फिज्म, ऑथर इस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस का इसलिए यूज करता है ताकि ह्यूमन बिहेवियर को किसी यानी ह्यूमन बिहेवियर को एनिमल इमेजरी दिखाकर जो है बताया जा सके। ऑथर जो है डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर पर अटैक ना करके वो इनडायरेक्ट वे से अटैक करने की कोशिश करता है एनिमल्स इमेजरी शोकेस करके। सो ऑथर वांट्स टू मेक रीडर्स व्यू ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल के बिहेवियर को शोकेस करके वो साइमल्टेनियसली ऑथर ह्यूमन बिहेवियर को भी शोकेस करना चाहता है इस तरीके की लिटरेरी डिवाइस को यूज करके। देन टू पोर्ट्रे द एक्ट ऑफ ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स विद एनिमलिस्टिक बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन किस तरीके से इस सोसाइटी में एक्ट करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को एनिमलिस्टिक फीचर्स के साथ दिखाया जाता है जूमॉर्फिज्म में। देन एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्कंक। तो स्कंक एक तरीके का एनिमल होता है। ये एक तरीके की पोयम है जो कि सीमस हीनी द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोयम में ऑथर कंपेयर करता है अपनी वाइफ को स्कंक के साथ, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से स्कंक जो है वो घूमता रहता है, ठीक उसी तरीके से सीमस हीनी की वाइफ उसी के घर के वरांडा में स्कंक की तरह घूम रही है। हीनी डिस्क्राइब्स हाउ ही सीज हिज वाइफ एज द स्कंक। तो यहाँ पर वो ह्यूमन क्वालिटी यानी स्कंक का सिंबल दिखाकर वो अपनी वाइफ के बारे में बताना चाहता है कि जिस टाइप का इस एनिमल का बिहेवियर होता है, ठीक उसी टाइप का बिहेवियर भी उसी की वाइफ का है, सीमस हीनी की। शी इज मूविंग एज अ स्कंक, वो भी स्कंक की तरह मूव कर रही है, वुड मूव बट डूइंग द थिंग्स हिज वाइफ वुड। यानी यहाँ पर ऑथर बताना चाहता है जिस तरह स्कंक मूव करता रहता है, ठीक उसी की वाइफ भी उसी के घर के वरांडा में मूव करती जा रही है। तो यहाँ पर एनिमल की इमेजरी दिखाने के साथ साथ ऑथर बताना चाहता है कि उसकी वाइफ का बिहेवियर किस टाइप का था, यानी स्कंक के से जो है अपनी वाइफ को कंपेयर कर रहा है। देन ऑफ मदर्स अमंग अदर, ये भी पोयम है that is written by A.K. Ramanujan. In this poem he compares his mother to an eagle. यहाँ पर वो अपनी मदर को ईगल के साथ कंपेयर कर रहा है। एंड ईगल को कंपेयर करने के साथ साथ वो एक सिंबल भी शोकेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसकी मदर के करेक्टरिस्टिक से बिल्कुल रिलेट करता है। तो यहाँ पर ईगल का सिंबल होता है स्ट्रेंथ को शोकेस करना, कि हमारी लाइफ में कितनी भी एडवर्सिटीज़ जो है हम कन्फ्रंट करें तो हमें जो है कभी भी अपनी सिचुएशन से या फिर अपने सर्कमस्टेंसेस से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें जो है कन्फ्रंट करते रहना चाहिए। सो इन दिस पोएम ही कंपेयर्स हिज मदर टू एन ईगल। ही डिस्क्राइब्स हाउ हर hands are a pet eagles which showcase his mother's strength in the face of adversity, कि उनकी मदर ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया बट वो हमेशा जो है अपने आप को उन्होंने उस सर्कमस्टेंस में रहकर भी उन्होंने अपने आप को बोल्डनेस जो है उस सर्कमस्टेंस में अपनी शोकेस की, यानी वो कभी भी उस सर्कमस्टेंस से उन्होंने एस्केप ऑन नहीं किया, उन्हें फेस करती चली गई। तो यहाँ पे ईगल सिंबल है स्ट्रेंथ का। शी फेस्ड सो मेनी सेटबैक्स इन हर लाइफ टाइम। तो ईगल के सिंबल को शोकेस कर कर A.K. रामानुजन जी अपनी मदर के बारे में बताना चाहते हैं कि उनकी मदर ने बहुत सारे अपनी लाइफ टाइम में सेटबैक्स जो है देखे, यानी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, बट वो कभी भी उन सिचुएशंस में उन्होंने कभी भी अपने आप को हार नहीं मानी
एंड साथ ही साथ हमेशा उस सिचुएशन से में रहकर अपने आप को विक्ट्री अटेन करने की कोशिश की उन्होंने। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.